a very big film, KGF Chapter 2 is coming. Very big in terms of scale. You all might be bigger than that also. One doesn't know. One will know on 14th April. So, Gautam, beginning with you, how difficult was it to accept that you will be known as the underdog till the day of release? How difficult was it to plan your release on 14th April? Because the moment Lal Singh Chadda shifted, Right. I got a call from him that, we are coming on 14th. So was it a difficult decision or it wasn't? So the way I see it, I mean, there are a lot of well-wishers and a lot of friends who call me and ask me, I mean, KGF is coming, it's such a big film. Probably you shouldn't be coming on the same day. The way I see it, sir, I think good film always finds its way to the audience, and we are very confident about our product. And I don't see it as. Yeah, thank you so much, sir. I don't see it as KGF versus Jersey. I see it as KGF and Jersey, because I think both the films have enough space. And I mean, the pandemic has done a lot of bad things, but if I can say one good thing, I mean, it brought us the entire fraternity and industry together. Every Friday, we want every film to work, and the same way I want KGF to work, because, yeah, because we are so happy. Gangubai worked, Triple R worked, Kashmir Files worked, and we want KGF to work, and we want Jersey to work. So yeah, I think we have enough space for both the films to work, and the audience get a better option. So we're happy for that. Yeah. Thank you. Well, I'm so happy to meet you, first of all. Thank you, so am I. Sir, honestly, this week is so like the release week is so crucial because Jersey is coming, KGF is coming, and I think we all are spoiled for choices. You know, it's a human drama. You'll see this lovely journey of Arjun Talwar. At the same time, you'll see KGF Chapter 2, which we all have been excited and waiting. So I think I'm the kind of person who watched Spider-Man and 83 on the same day, like back-to-back shows. So guys, I mean, I'm very excited for the film to come out, first of all, because it's my best, like, according to me, I feel like I'm really proud of this film. And second of all, it's coming out in theaters. Bollywood is coming. You know, we need to stand together. We need to celebrate each and every film. This story deserves to reach out to the wider audience, and I'm just happy for it to be coming out in theaters. So, Great. yeah. Great. Well, see, I'll go a little back before I come to answer your question, because my point of view towards these things is a little different. You know, after Kabir Singh, you know, everybody said, अब तुम्हें ना 150 करोड़ की फिल्म करनी चाहिए क्योंकि पैसा लोग लगा देंगे तुम्हारे ऊपर. You know, I was like, लेकिन वो लगा तो देंगे, लेकिन पिक्चर क्या होगी? You know, so I think एक स्केल्ड फिल्म बनाना और एक अच्छी फिल्म बनाना हमेशा सेम चीज़ नहीं होते. मुझे ये लगता है अच्छी फिल्में चलती हैं. तो KGF 2 अच्छी फिल्म होगी, ज़रूर चलेगी. जर्सी अच्छी फिल्म होगी, ज़रूर चलेगी. फिल्म अच्छी होनी चाहिए. और दूसरा, यार, मैंने जो सिनेमा देखा है, जो मैं बड़ा हुआ हूँ, बिकॉज मेरे लिए पॉसिबल था ना बड़ी फिल्म करना, अभी भी पॉसिबल है. क्यों नहीं कर रहा मैं, ये क्यों कर रहा हूँ? तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ. आई एम चेजिंग द हार्ट ऑफ अ फिल्म. आई एम नॉट चेजिंग द साइज ऑफ अ फिल्म. Because to me, the heart of the film is the size of the film. The size of the film is just a platform for a film, you know. And of course, it's nice to see it on the big screen. So I don't come from that kind of thinking that बहुत सारा पैसा खर्च करो तो बहुत सारी audience आएगी. I think हिंदुस्तान एक ऐसी country है, who are very smart, कि यार अगर कम में अच्छा काम होता है तो मैं ज़्यादा क्यों दूँ? You know, तो मैं तो बचपन से ऐसे ही बड़ा हुआ हूँ, मेरी यही थिंकिंग है. और मैं तो हमेशा डरता हूँ एक्चुअली बहुत हाई बजट फिल्में करने से, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हर चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. यू नो, आई थिंक लोग फिल्म बनाते हैं. यू नो, तो मेरी रिलेशनशिप इन 4 लोगों के साथ है, जो 3 लोग इंक्लूडिंग मी 4 जो अभी स्टेज पर बैठे हुए हैं. और अगर हम साथ में मिलके एक फिल्म की कहानी को समझ के, उसकी इमोशनैलिटी को समझ के, और हम किसके लिए फिल्म बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, समझ के एक बहुत ही टाइट वे में काम करें,
तो शायद उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत पोटेंट होता है, ऐसी मेरी थिंकिंग है। हैविंग सेड दैट, मैं हमेशा देखा है छुट्टी के टाइम जो भी 2-3 पिक्चरें आती हैं और यही 4 सवाल होते हैं, वो आएंगे तो आपका क्या होगा और आप आएंगे तो उनका क्या होगा। लेकिन सब फिल्में छुट्टी पे जो नॉर्मल उनका कलेक्शन होता है उससे बेहतर करती हैं, क्योंकि छुट्टी पे देखिए क्या होता है, एक ऑडियंस है जो हमारी फिल्म देखना चाहती है, एक ऑडियंस है जो भी दूसरी फिल्म आ रही है वो फिल्म देखना चाहती है, लेकिन एक ऑडियंस है जो फिल्म देखना चाहती है। वो छुट्टी के लिए वेट करते हैं कि चलो यार फिल्म देखते हैं। सो व्हाई शुड यू नॉट बी द फिल्म दैट is in the theaters when everybody wants to go watch a movie, so you should not give yourself so much importance also कि सिर्फ मेरी वजह से लोग आएंगे। बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग आते हैं, so that's how I look at it. I think फिल्म का दिल बड़ा होना चाहिए। मैं हमेशा उन्हीं फिल्मों को चेज करूंगा जिनका दिल बड़ा है। शाहिद, लगभग 2 डेकेड हो गए हैं आपके करियर को, और लगा पिक्चर के लिए 2 दशक हो गए, मैं बोला नहीं यार 2 महीने हुए। मैं जानना चाहूंगा कि बॉक्स ऑफिस का प्रेशर कितना होता है, एक फिल्म परफॉर्म करे बॉक्स ऑफिस पर, क्या अभी भी आप उस चीज को लेके काफी नर्वस होते हैं, और फिल्म रिलीज से पहले क्या कुछ आपके मन में चल रहा होता है, या ओवर द इयर्स आप सीख गए हैं कि यार जो भी होगा देखा जाएगा? मतलब कुछ बताएंगे इसके बारे में? जो भी होगा देखा जाएगा, पर तो लाइफ चलती है, तो आई थिंक दैट्स ऑलवेज अ गुड स्ट्रैटेजी टू हैव। इट्स यू ऑलवेज हैव टू गेट अप रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस, दैट्स हाउ आई लिव्ड माय लाइफ। जैसे आपने कहा मुझे ऑलमोस्ट 2 दशक हो गए हैं, 18 साल हो गए हैं, और नहीं 19 साल होने वाले हैं इस साल, और अगले साल 20 हो जाएंगे। सो आई हैव बीन हियर फॉर अ व्हाइल। आई डोंट फील दैट ओल्ड बट आई हैव बीन हियर फॉर अ व्हाइल। क्या है दैट एक्चुअली जो आपने सवाल पूछा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज आपकी फिल्म का जो पोटेंशियल होता है वो उसका जॉनर और उसकी रीच कितनी हो सकती है उस पर डिपेंड करता है, और अलग अलग सब्जेक्ट्स जो होते हैं, एज यू स्पेंड मोर टाइम एज एन एक्टर, एटलीस्ट मुझे थोड़ा वक्त लगा है समझने में, क्योंकि मैं थोड़ा एक्टिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं स्टारडम वाले बैकग्राउंड से नहीं आता। मेरे फादर जो थे वो एक्टर थे, तो हमेशा बहुत प्योर वे में मुझसे डिस्कस करते थे। मेरी मॉम भी हमेशा से कलाकार थी, तो वो हमेशा कलाकारी की बात करते थे, वो बिज़नेस की बात इतना शायद जानते ही नहीं थे मुझसे करने के लिए। तो वो शायद मैंने खुद समझा है पिछले, ये जो बैठे हैं ना मेरे साथ, इनको मैं 18 साल से जानता हूँ। 18 साल, 12, 13, 15 साल, जब भी मैं से पहले आए थे ये, तो हाँ आई थिंक 15 साल हो गए। और जब भी मुझे कुछ भी नंबर्स का पता करना होता तो मैं इनको फ़ोन करता था, और अब फाइनली ये अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ अमन। ताली बजा दो यार, प्रोड्यूसर ने। आपका भी पहला दिन आएगा, लोग ताली बजाएंगे, अच्छा लगेगा। सो हमेशा नंबर्स ये मुझे बताते थे, और धीरे धीरे समझाते भी थे कि अलग अलग जॉनर्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की ऑडियंस होती है। मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि मेरी फिल्म की जो ऑडियंस है मैं उसको मैक्सिमाइज़ कर पाया या नहीं। जितने लोग इस फिल्म या इस सब्जेक्ट को देख सकते थे, समझ सकते थे या इंटरेस्टेड होते, वो इस सब्जेक्ट को देखते हैं या नहीं, और मेरी फिल्म की क्वालिटी कितनी अच्छी है। बिकॉज जब फिल्म की क्वालिटी बेहतरीन होती है तो वो अपनी ऑडियंस से ज़्यादा बाहर तक जा सकती है। तो एक आपकी कोर ऑडियंस होती है, और एक वाइडर ऑडियंस होती है जो कोई भी अच्छी फिल्म देखना पसंद करती है। और तीसरी चीज़ है कि आपकी अपनी एक ऑडियंस होती है जो आपको पसंद करती है एज एन एक्टर, सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे यही लगता है अब कि मेरी जो भी फिल्म आए वो मैं जितने ज़्यादा लोग उसको समझ सकें या रिलेट कर सकें, मैं चाहूँगा, क्योंकि कबीर सिंह के बाद एक वाइडर ऑडियंस बेस है और बहुत प्यार मिला मुझे। तो एक्चुअली मैंने इस फिल्म को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि जितना प्यार मुझे मिला, जितना इमोशनल मुझे फील हुआ, अगर मैं वो वापस ऑडियंस को इस कहानी के थ्रू, इस कैरेक्टर के थ्रू दे पाऊँ, कि जब वो फिल्म देखकर ऑडियंस बाहर जाए तो उन्हें लगे कि उनको एक एक होलसम फिल्म मिली और कहीं दिल को छुए वो फिल्म, तो मैंने वो सोच कर ये फिल्म की है। बिकॉज एक्चुअली जब आप दिल को छू जाते हैं तो नंबर्स ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो आ जाते हैं, लेकिन दिल को छूना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फिल्में शायद इसी वजह से बनाते थे और अब भी बनानी चाहिए। शायद आपने पापा का जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स माने जाते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। एक चीज़ अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने बेस्ट क्वालिटी क्या इम्बाइब की है अपने पापा से, बतौर एक्टर या बतौर सन, क्या बताना चाहेंगे? वो आपको डायरेक्ट भी कर चुके हैं पहले और फिर से काम करने का मौका मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे एक बेस्ट क्वालिटी जो आपने इम्बाइब की उनसे? उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैंने उनसे जो इम्बाइब किया है वो ये है कि मैंने उनका जो वर्क एथिक है और जो अपने काम की तरफ एक इनोसेंस होता है कि आप ऐसे हर चीज़ को अप्रोच करते हैं जैसे शायद आपकी पहली फिल्म है, वो मैंने अपने डैड में देखा है। वो कभी ऐसे नहीं बिहेव करते कि अब तो मैं प्रोफेसर या प्रिंसिपल हो गया हूँ, वो हमेशा स्टूडेंट की तरह ही
हर फिल्म को, हर कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं। और उनके जैसे दिग्गज कलाकार अगर इतना हम्बल रह सकते हैं तो हमारी क्या औकात। मैंने यही सीखा है। आपने कहा कि मेरे माता पिता दोनों बहुत टैलेंटेड एक्टर्स थे, तो क्या कहीं कोई हैं वो हैं। सॉरी आप सॉरी थे बोलेंगे मुझे घरे चपेट पड़ेगी। sorry, तू होगा, थे, हम तो हैं। सॉरी माय पेरेंट्स आर स्टिल वेरी मच इन द जोन। दोनों बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं। Thank you जी। तो क्या कहीं जो आपने कहा कि उससे कम मैं होड़ नहीं दूंगा, जो आपका जो डायलॉग है, और आप क्योंकि आप खुद पिता बन चुके हैं, तो क्या आपके बच्चों, जैसे किट्टू ने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी एक जर्सी को लेकर, उसी तरह क्या आपके बच्चों ने कुछ ऐसा किया जिसने आपको कुछ आप में बदलाव लाया? सबसे पहले तो आपका बहुत अच्छा सवाल है। और मुझे लगता है कि अगर मैं एक बाप नहीं होता तो मैं शायद इस फिल्म को नहीं निभा पाता जिस तरीके से मुझे निभाना था। शायद ये फिल्म भी मेरे दिल को इसलिए छू गई क्योंकि अब मैं एक पेरेंट हूँ, तो मुझे वो रिश्ता समझ में आता है। क्योंकि जब आप बेटे होते हो ना, तो आपको कभी समझ में नहीं आता कि बाप को क्या फील होता है। चाहे आप कितना भी कोशिश करें, वो आपको हमेशा ऐसा लगता है, वाई डजंट ही अंडरस्टैंड मी, वाई डज ही डू दिस, वाई डज लेट मी बी मी, आई वांट टू बी मी, ये सब एक तरफ लगता है। लेकिन जब आप बाप बन जाते हो ना, तो आपको सब समझ में आने लगता है कि आपके फादर या आपके मदर आपको जो भी कहते थे वो क्यों कहते थे। बिकॉज एक पेरेंट का जो अपने बच्चे की तरफ जो एक इमोशन है, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने 30s में पहुंच जाते हो तो आपकी ज़िंदगी एक खुली किताब होती है जो आप कहीं बीच में हो। अगर 100 पेज की पन्ने की किताब है तो आप कहीं 40-50 पेजेस पे हो। आपका हर रिश्ता जो है वो 40-50 पेजेस का बैगेज लेके चल रहा है। लेकिन जब बच्चे आते हैं तो वो एक नया रिश्ता होता है, उसको आप 1 से फिर से स्टार्ट कर सकते हो, और वो बागडोर आपके हाथ में होती है कि आप उसको कैसे निभाना चाहते हो। तो आई थिंक उसके अंदर एक इनोसेंस होती है जो बचपन में आपको महसूस होता था अपने रिश्तों के बारे में, वो आप फिर से एक्सपीरियंस कर सकते हो एज अ पेरेंट। सो वो चीज़ मैंने आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट समझी कि यार ये तो बच्चा इनोसेंट है, मैं जैसा रहूँगा ये मुझसे वो सीखेगा, और हमारी रिलेशनशिप उसका दारोमदार मेरे ऊपर है। जब मैं बच्चा था तो मेरे पेरेंट्स के ऊपर था उसका दारोमदार। सो वो बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने सीखी है। और दूसरा पार्ट क्या था आपके सवाल का? वो था कि क्या पेरेंट्स जो कि बहुत अच्छे एक्टर और सुपरस्टार तो आप बनते ही, क्योंकि आप बहुत हैंडसम हैं, बहुत गुड लुकिंग है। मैंने आपको खूबसूरत बोला तो आप भी कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं मुझे। थैंक यू। नहीं, मैं ऑनेस्टली कह मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। जी जी। मैम यो लुक अभी यो सेंटर में देखिए अभी सेंटर बोलो ना आप। मैडम जी इधर लुक दीजिए ना। भाई यो सेंटर। धन्यवाद, थैंक यू। नो